Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now the remaining topic of this chapter number 7 are MCQs. Now the MCQs of chapter number are 1. G, capital G is called gravitational constant. Number 2. In case of satellite, the necessary acceleration is provided by gravitational force. 3. The centripetal force is always directed towards the center of circle. ये दूसरे लफ्जों में डेफिनेशन भी है किस चीज़ की, सेंट्रीपिटल फोर्स की. ओके, रिपीट कर रही हूँ. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. जिसकी फोर्स किसके जानिब होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल के. नंबर 4. इफ द स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज डबल, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स 4 टाइम, नॉट अ 2 टाइम बट 4 टाइम. आप इसकी जब डेफिनेशन में देखेंगे, जब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखेंगे तो आपके पास स्क्वायर आ रहा है. स्क्वायर का मतलब जब आप उसको और डबल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 टाइम. ओके, बात समझ में आई. नाउ पॉइंट नंबर 5. व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. Number 6. When a body moves on the circumference of the circle with constant speed is called uniform circular motion. The difference between the point 5 and 6, that is the constant speed. Okay, the word which is used in point number 6, which is constant speed. So the circulation motion becomes uniform. Okay, now number 7, that is 1 radian equals to 57.3 degree. 1 रेडियन आपका किसके बराबर होता है इन डिग्रीज में, 57.3. नाउ द नंबर 8 इज the change of velocity on the circular path is called centripetal acceleration. The change of velocity is called acceleration, and in the terms of circular path we call centripetal acceleration. Okay, now number 9 is the value of g is किस चीज के बराबर होती है, which is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the unit of the capital G, which is the universal gravitational constant. 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay. Now number 10. Law of universal gravitational, which is another words called capital G, was forwarded by Sir Isaac Newton in 1686. Sir Isaac Newton, न्यूटन का फुल नेम है, जिनको आम वर्डिंग में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन. इनका फुल फॉर्म नेम क्या है, सर इसाक न्यूटन. अगर आपके पास कहीं न्यूटन लिखा हुआ आए या सर इसाक न्यूटन आए तो ये एक ही पर्सन के फुल नेम है. ओके, जो कि न्यूटन है. Now number 11, the value of G was determined experimentally by Henry Cavendish in 1798. वैल्यू जो डिस्कवर करी, जो वैल्यू डिफाइन की गई, जो डिटरमाइन की गई एक्सपेरिमेंटली, वो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी इन 1798. Now number 12 is the mass of Earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. जो हमने अपनी डेरिवेशन में भी सॉल्व किया था मास ऑफ अर्थ को, सेम यही वाली चीज है इन नंबर. द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to power 24 kg. Now 13 is
The radius of Earth is 6.38 into 10 raised to the power 6 meter. Radius of Earth is 6.38 into 10 raised to the power 6 meter. Now number 14. The centrifugal force is directed away from the center. Again, I am repeated that the centrifugal force is directed away from the center of the circle. Okay. Now 15 is the magnitude of centripetal acceleration, which is another word called AC, is given by AC equals to V square over R. A is recommended by acceleration and C is recommended by centripetal. Centripetal acceleration AC equals to V square over R. Now number 16. Centripetal force will increase 2 times if the mass of a body moving with uniform speed in a circle is doubled. जब आपकी centripetal force increase करेगी 2 times if the mass of a body with a जो mass of a body है वो आपका move कर रहा है uniform speed में in a circle, तो उसकी क्या value बनेगी? डबल. ओके. फोर्स किस तरीके से इंक्रीज करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स किस रेशो पे इंक्रीज करेगी? डबल रेशो पे. ठीक है. नाउ 17 इज फॉर अ सैटेलाइट revolving around the earth in a circular orbit, if the radius of the orbit is increased from r to 2r, its velocity will be v square over 2. Okay. The value g decreases as altitude increases. हमने लास्ट टॉपिक में यही चीज डिस्कस करी थी कि हमारी जब g की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा. सेम एज इट इज जब हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो क्या चीज डिक्रीज होगी? हमारी द वैल्यू ऑफ g. स्मॉल g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. जिस तरीके से हाइट इंक्रीज होती जाएगी हमारी क्या चीज डिक्रीज होती जाएगी? द वैल्यू ऑफ g. Number 19, the velocity of satellite which moves round the earth at a specific height is called orbital velocity. This is the definition of orbital velocity. I repeat that the velocity of satellite which moves round the earth at a specific height is called orbital velocity. Now number 20. The formula for centripetal force is Fc, which is the centripetal force. Centripetal force F and C is determined by centripetal. Okay, equals to mv square over r. Now number 21. The formula for centrifugal force is Fc equals to minus mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास जो वैल्यू होती है फोर्स की वो इज इन द पॉजिटिव टर्म, लेकिन जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है फोर्स, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस की साइन. ठीक है. नाउ नंबर 22 इज द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट और द अर्थ and the moon is provided by the force of gravity. Centripetal force between किसके? sun और planet के और the earth या earth and the moon is provided by the force of gravity. कौन सी force provide कर रही है moon को? gravity. Now these are the MCQs of chapter number 7. Now let's we continue our lecture with numerical at the same chapter, which is chapter number 7. Radius of a, I repeat that 7.1 is at what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter
to experience a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड जो ट्रेवल कर रहा है इन अ सर्कल विद स्पीड ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है। एट व्हाट स्पीड, उसकी स्पीड क्या है जिसपे वो सर्कल में मूव कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी डिस्कस अवर सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल। द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 7.1 इज the numerical solution of numerical number 7.1 is data. First you write the data of the numerical, that is the radius of a circle equals to r equals to 2 meter. Okay, centripetal acceleration, in other words AC, is equals to 9.8 meter per second square. आपसे पूछने को क्या कह रहा है, what the value which we will define, speed of an object, that is equals to v equals to question mark. Formula which are applied in this numerical, that is the AC equals to v square over r. जो चीज हमें मालूम करनी है वो एक तरफ करेंगे और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। Now v square is the speed of the velocity, speed of an object. V square equals to AC equals to v square over r. Now v square is equals to AC मल्टीप्लाई बाय आर। आर जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लगाएंगे, स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कैंसिल, दूसरी तरफ रूट, वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रूट में से निकालेंगे, विच इज द वैल्यू v इक्वल्स टू अंडर रूट 19.6। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, v इक्वल्स टू 4.427 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7.2 इज a car goes round a curve at 20 meter per second. The radius of curvature is 50 meter. Calculate the centripetal acceleration of the car. आपके पास वही सेम, अब कार की बात करें, पहले मूविंग बॉडी थी, अब कार के ऊपर बात हो रही है कि कार जो है वो राउंड पे है और कर्व पे मूव कर रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर आपके पास क्या दे रखा है, 50 मीटर। कैलकुलेट आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेम आपके पास वही डेटा बनेगा। क्या है डेटा में आपको क्या गिवन दे रखा है, स्पीड ऑफ अ कार दे रखी है विच इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 50 मीटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मालूम करने के लिए कह रहे हैं विच इज AC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला विच आर अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम, that is AC equals to v square over r. By putting the values from the data we get AC equals to 20 whole square divided by 50. 20 whole square means 400 divided by 50. Now AC equals to, after the division of 50 by 400 divided by 50 we get AC equals to 8 meter per second square. Okay. Now the problem number 7.3 is a proton of mass 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg is moving in a circle of radius 100 centimeter. An magnet applies a force of 1 into 10 raised to the power minus 12 Newton directed towards the center of the circle. अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बताया जा रहा कि आपके पास आया फोर्स कौन सी है, कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि आपके पास जो 7.1 और 7.2 में आपको क्लियरली डिफाइन किया गया था कि आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है। यहाँ पर देखें क्या डिफरेंस है कि उसने आपको बाय द डेफिनेशन आपसे पूछा है कि आपने क्या चीज मालूम करनी है, क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, आपने क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन। इसमें आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया बल्कि डेफिनेशन के जरिए बताया जा रहा है कि आप कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। नाउ वी सी द सॉल्यूशन। द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 7.3 इज मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू m, स्मॉल m,
equals to 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. Radius of a circle is equals to small r equals to 100 centimeter. Centimeter converts into meter because our unit is in meter. Okay, so we convert our centimeter is into meter. 100 divided by 100 is equals to 1 meter. Now applied force equals to 1 into 10 to the power minus 12 Newton. Speed of proton equals to V equals to क्वेश्चन मार्क. सवाल में मैंने आपको समझा दिया था कि स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमने मालूम करनी है. हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल मौजूद है, अप्लाइड फोर्स वो आपके पास मौजूद है. अब फॉर्मूला लगाते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना है कि आया हमें सेंट्रीपिटल वाला लगाना है या सेंट्रीफ्यूगल वाला. तो इस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, वो जो सवाल में डेफिनेशन हमें गिवन है. ओके, इस वजह से मैंने कहा था कि ये डेफिनेशन वगैरह सब जहन में रखते हुए फिर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. अब हम जो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वो कौन सा करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, विच इज Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r. v स्क्वायर हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें प्रोटॉन की स्पीड मालूम करनी है. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू Fc इंटू r ओवर m. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, squaring both sides, so square will be cancelled and other hand we will square root on the other hand, so the equation becomes v equals to under root Fc into r over m. By putting the values from the data we get v equals to under root 1 into 10 to the power minus 12 which is equals to the force, and r is equals to 1 जो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था वो वाली वैल्यू हमने रखी 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 मास ऑफ प्रोटॉन. सो द वैल्यू वी विल गेट v इक्वल्स टू 0.5988 इंटू 10 टू पावर 15. रूट में से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, v इक्वल्स टू 2.44 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर second. Now 7.4. A string 2 meter long is used to viral a 200-gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in string. अब इसकी वर्डिंग से आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सा क्या दे रहे हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग मालूम करना है, वायरल है, क्या है. तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बात की जा रही है. कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, कितने लॉन्ग, क्या लॉन्ग लेंथ है उसकी 2 मीटर. मतलब हम उसकी लेंथ को ऐसा क्या करेंगे, आर कंसीडर करते हुए हम इसको लेंथ को जो है वो आर कंसीडर करते हुए अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. एल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में, विच इज गिवन एज 2 मीटर. ओके, नाउ मास ऑफ स्टोन सिंपल क्या दे रखा है आपको 200 ग्राम स्मॉल एम. अच्छा, वेलोसिटी किस स्पीड से वो मूव कर रही है, आपके पास स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग. अच्छा, टेंशन इन स्ट्रिंग हम इसको किस तरीके से, इन अदर वर्ड्स भी सॉल्व कर सकते हैं एज अ फोर्स. ठीक है, हम टेंशन इन स्ट्रिंग किसको कंसिडर करेंगे, एज अ फोर्स, और जो लॉन्ग दे रखा है उसको हम एज अ किस तरीके से कंसिडर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ आर. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ 7.4 इज डेटा which are given as in the numerical. Length of string is equals to L. L is equals to we suppose R equals to 2 meter. मीटर को हम किस में करेंगे, केजी में, क्योंकि हमारे पास जो चल रही है, हमारे पास जो यूनिट में जो हमारे पास फॉर्मूले में जो चल रहा है वो है हमारे पास इन केजी, वो मीटर. तो इसको सेम एज इट इज रहने देंगे. मास ऑफ स्टोन हमारे पास क्या है, स्मॉल एम इक्वल्स टू 200 ग्राम. ग्राम को हम चेंज करेंगे इनटू केजी. m इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.2 kg. स्पीड ऑफ स्टोन क्या दे रखा है हमारे, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. टेंशन इन स्ट्रिंग विच आर डिफाइंड इज एज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड Fc इक्वल्स टू T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. Okay, now the formula which are applying this numerical is Fc equals to mv square over r. Fc is equals to 0.2 into 2 का whole square over 2.
Now 0.2 into 4 divided by 2, Fc equals to 0.2 into 2, Fc equals to 0.4 Newton. After the all calculation, we will get Fc equals to 0.4 Newton. Okay. Now here we wind up our lecture. Remaining numericals we will discuss in our next lecture. So students, be care, stay home, stay safe and be happy and complete your work as soon as possible. Now, Allah Hafiz.